Hello everyone. So in the previous lecture, we have studied support vector regression, and now I want to discuss some numerical problems on support vector machines. Okay. So here is our first question. Let us suppose we are having a data set with two features. Okay. And we are going to perform binary classification over it. I want to train a support vector machine classifier with a linear kernel on the dataset. Okay. And the dataset is having the 4 points. Okay. So two features are there: binary classification, kernel is linear in nature. Okay. Fine. Here is your dataset given. Your data point one is 2, 3. Okay. So I can prepare a dataset according to the given question. Okay, here is what you can do. This is your feature number one. This is your feature number two. This is your target. The first point is 2, 3. It belongs to class 1. Second point is 5, 7. It belongs to class 1. Third point is class 2. It belongs. The points are 8 and 5. And 9, 4. It belongs to class number 2. Okay, I need to perform the classification here using support vector machine. The kernel is given as linear, so it will be something like this. This will be your class 1, this will be the class 2. These 2 points are present in class 1, and these 2 points are present in class 2. Okay, so I need to perform the classification using SVM. Assume that you are given with a bias term denoted by B and the weight vector is denoted by W. Initially, we are assigning 0 to all. Assume that the regularization term is 1. Okay, I need to perform one iteration of the SMO, sequential minimal optimization. So, this approach or technique we have already discussed in previous class. And what happened after doing Lagrange, we got lambda terms, and these lambda terms are Lagrange multipliers, and we want to find the value of Lagrange multiplier. So it has been told कि आप SMO लगाइए, apply SMO and take pair of lambda values, perform optimization of them. क्योंकि उसका नाम ही यही है एल्गोरिदम का, सिक्वेंशियल मिनिमल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. तो लैम्बडा निकालिए, एंड आफ्टर लैम्बडा आपको वेट एंड द बायस जो है वो मिल जाएगा. तो अल्टीमेटली वेट और बायस अपडेट हो जाएंगे, ठीक है, बाय द वैल्यूज ऑफ लग्रांजे मल्टीप्लायर. हियर दे आर सेइंग कि आप जो लर्निंग रेट है, यू हैव टू कंसिडर इट एज 0.01 क्वेश्चन में दिया है. ठीक है, तो वन इटरेशन मुझे परफॉर्म करना है, वेट एंड बायस मुझे अपडेट करना है. कैसे करूंगा, वी आर गोइंग टू चेक इट. फिर मुझे डिसीजन बाउंड्री की इक्वेशन भी निकालना है आफ्टर अपडेशन. ओके, तो क्वेश्चन में ये सारी बातें मुझे दी गई हैं. ओके, तो आप ये जानते हैं डिसीजन बाउंड्री क्या होती है. डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है. आपके पास यदि 2 क्लासेस हैं तो इक्वेशन ऑफ 1 क्लास होती है डब्ल्यू एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू +1, और दूसरी की होती है डब्ल्यू एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू -1. तो इसी तरीके से वो रीजन्स जो है वो डिफाइन करे जाते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस. तो भाई क्या करूं मैं. इनिशियली मुझे एसएमओ लगाना है और ये बातें गिवन है. लेट्स प्रोसीड. तो भाई सोल्यूशन कुछ इस तरीके से बना फॉर एसएमए
SMO इटरेशन मुझे करना है, वन करना है, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द डेटा पॉइंट्स फर्स्ट, चूज टू डेटा पॉइंट्स टू ऑप्टिमाइज. ओके, लेट्स चूज डेटा पॉइंट 1 एंड डेटा पॉइंट 4. कोई भी दो पॉइंट लीजिए ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए. ठीक है, तो मेरा डेटा पॉइंट 1 है 2 3, जो कि क्लास 1 को बिलोंग करता है. मेरा डेटा पॉइंट 4 है 9 and 4, जो कि क्लास 2 को बिलोंग करता है, एंड क्लास 2 इज -1, है ना, आपने ऐसा रखा है, +1 एंड द -1, यही होता है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन रिगार्ड्स टू दिस ओनली. ऐसे ही पढ़ा था हमने, पॉजिटिव क्लास एंड नेगेटिव क्लास. तो वो गलत थोड़ी ना बोल रहा है, बिल्कुल सही है. I took a data points. I took data points of different classes. Okay. Then what is been told? आपको क्वेश्चन में गिवन था कि करंट वेट और बायस जीरो लेकर चलिएगा. इन इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो आई डिड द सेम थिंग. आई डिड परफॉर्म द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसवीएम. वहां पर भी आपने यही तो करा था. वेट और बायस इनिशियली जीरो लिया था, फिर बाद में आपने इटरेशंस परफॉर्म करे थे, एंड देन यू डिड द अपडेशन ऑफ द वेट एंड द बायस. ये आपने करा था. ओके, लिया, एंड देन क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, लेट्स सी. तो भाई वेट मुझे अपडेट करना है, एसएमओ लगाना है. तो ये रही आपकी वेट वेक्टर को अपडेट करने की इक्वेशन. W dash equal to W plus eta, that is a learning rate, is equal to y2 x2 minus y1 x1. याद करिएगा, लीनियर कर्नल है, तो लीनियर कर्नल में जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, वी हैव लर्नड कि x2 y2 करें, x1 y1 करें. दैट्स व्हाट वी हैव लर्न. पॉलिनोमियल होता तो जितने डिग्री का होता उतना वी हैव टू कंसिडर, बट फॉर द सिंपलेस्ट केस दे टोल्ड कि जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ x एंड y. we did seen a problem related to it in our previous lectures. यहां पर भी वही है सॉल्यूशन में. ओके, सो क्या करा, x2 y2 minus x1 y1. You have to take the product of x and y. Okay, and just put it here. So my initial weights are 0 0. My eta value is 0.01, and this is what I have to do, -1 into 9 4. Okay, not -1, हाँ, y2 तो -1 था, ये मेरा +1 है, क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्शन करना था, तो स्टिल इट इज -1, है ना, यहाँ पर ऐसा हुआ है. फाइन. तो आप पॉइंट बाय पॉइंट टास्क परफॉर्म करिएगा. द फाइनल रिजल्ट विच यू आर गोइंग टू गेट इज -0.07 and -0.05. That is the final answer. This is my updated weight. An updated bias will be B plus eta into y2 minus y1. ये मेरा updated bias है. That is -0.02. और डिसीजन बाउंड्री की इक्वेशन कैसी आ जाएगी, ये होती है ना WX plus B. That is a decision boundary. ओके, तो क्या करना है, यहां पर W का ट्रांसपोज इनटू X करिएगा. ऑब्वियसली आपको वट एवर बी द वेट्स यू गॉट, ठीक है, वट एवर बी द वेट्स यू गॉट, यू हैव टू परफॉर्म द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इट with x1 and x2. That's what you have to do. Okay, plus the bias term. So this is the weight W1 W2. You got it? Perform the dot product with x1 x2. Here is what I'm getting, minus the bias term. The bias came to be negative, तो वो माइनस लगा हुआ है. इन जनरल तो वो प्लस ही होता है. इक्वल टू 0. दिस इज योर डिसीजन बाउंड्री इक्वेशन. ओके, तो आपने पहला इटरेशन परफॉर्म करा. अगले इटरेशन में यू कैन टेक एनी अदर कॉम्बिनेशन, आप ले सकते हो. तो भाई ऐसा था कि कॉम्बिनेशन ले लेकर चल रहे थे. दैट मीन्स अभी मैंने 1 और 4 का कॉम्बिनेशन लिया, देन आई कैन टेक 1 and 3 कॉम्बिनेशन ऑल्सो. फिर आई कैन टेक 2 and 4 कॉम्बिनेशन,
देन 2 and 3 कॉम्बिनेशन ऑल्सो, इतना आपको लेना है। बाकी तो 1 and 2 बिलोंग्स टू द सेम क्लास, 3 and 4 बिलोंग्स टू द सेम क्लास। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। एंड वॉट यू हैव टू डू एज सीन, कि पॉइंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है टू अपडेट द वेक्टर। ओके, y2 into x2 माइनस y1 into x1। ओके, आप ये वेट्स निकाल लीजिए, बायस निकाल लीजिए। दिस इज द इक्वेशन फॉर द बायस। ओके, इक्वेशन आपकी फिर जो है डिसीजन बाउंड्री की, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। दिस इज द इक्वेशन फॉर द डिसीजन बाउंड्री। ओके, ओवर वन इटरेशन इन द एसएमओ अल्गोरिदम। तो बहुत बेसिक एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया। दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ support vector machine. Okay, fine. Then let us take another question. It's a similar question. Okay, I am having same two features, two classes. I need to train SVM over the four data points, and here is the data set. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so these 2 points belongs to class 1. These 2 points belongs to class minus 1. Okay, fine. Then what I have to do, initially my weight vectors are 0, bias is also 0, assume regularization 1. Okay, I'm not inducing any penalty at the moment, though regulation term has been mentioned here. I haven't given any penalty so far. In the above problem also, in this problem also, I'm not giving any penalty. Okay, just keep it as per the question given. Okay, just one iteration I'm working. Okay, perform one iteration. So same thing, one iteration, I can select the points, I can choose any of the points of different classes. Let us suppose select 2 and 3. Okay, so this is data point 2 with class 1, and this is data point 3 with class minus 1. Current weight and the bias are 0. Okay, then what I can do, here is your weight update. W equal to W plus eta, again y2 x2 minus y1 x1. Solve this equation, you get the result, updated weights. Similarly, find the updated bias, okay, and make the decision boundary equation. Okay, that's what you can do. All right, fine. So this is my equation of decision boundary. So I was available with these two questions using SMO optimization algorithm to find the weight and the bias and equation of decision boundary for support vector machine. Okay, I am available with other more questions related to the SVM that I will share to you all. Okay, fine. So let's proceed ahead with our another topic, that is decision trees. Very interesting and important algorithm, decision tree. Okay, fine. So as we have seen in support vector machine that it is a good classification algorithm, it uses kernel trick to separate between different classes based upon their distribution. Okay, it can be polynomial, it can be linearly separated. Okay, so there are two kinds of separation. One is linear, one is non-linear. Linear is easiest case, and the non-linear case is quite complicated. But support vector machine is having a kernel trick. It can apply polynomial also, sigmoid also, Gaussian also. It can perform, and it will try to separate different classes. However, this approach is quite complicated, and SVM do take resources. Okay, उसको complications होता है,
ये काम करने में उसको रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज़्यादा लगता है एसवीएम के लिए। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए, वी आर हैविंग another algorithm for the classification and regression both, that is decision tree. तो अब हम अपनी अप्रोच चेंज कर रहे हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वी टोल्ड कि सर आपको बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है, तो यू कैन परफॉर्म प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप कैलकुलेट करिए प्रोबेबिलिटीज एंड जो है आप बता दीजिए विच क्लास अ डेटा पॉइंट बिलोंग। यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करा, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे हाइपर प्लेन वाला एसवीएम के अंदर। फॉर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के अंदर हमने यूज करा एप्सिलॉन ट्यूब। और दोनों ही, क्योंकि सपोर्ट वेक्टर मशीन था एंड यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस कि कहीं ना कहीं रिलेट तो करते ही हैं वो। ओके, तो ट्यूब कुछ और बोल रहा था, हाइपर प्लेन कुछ और बोल रहा था, लेकिन जो बेस था वो दोनों का सेम है। अप्रोच कैसे अलग हुई उनकी, वो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के चक्कर में उनका इंटरप्रिटेशन अलग हो गया, बाकी तो चीजें सेम थी एसवीएम जैसी। तो ये ड्रॉबैक जो हमें पता चले कि कंप्यूटेशनल ओवरहेड बहुत है एसवीएम के अंदर, हम अपनी टेक्निक चेंज कर रहे हैं। अब हुआ ये कि डिसीजन ट्री, एक फेमस एल्गोरिदम जो है वो आई, और उसने कहा कि यस आई कैन ऑल्सो परफॉर्म क्लासिफिकेशन इन द रिग्रेशन। ठीक है, तो जो फिनोमेना होगा डिसीजन ट्री का, वो स्प्लिटिंग का होगा, स्प्लिटिंग डेटा इनटू सब डेटा। दैट इज व्हाट डिसीजन ट्री डू। ओके, क्योंकि ये एक ट्री है, तो डिसीजन ट्री को पढ़ने के पहले ट्री के बारे में वी शुड नो। ओके, व्हाट डज अ ट्री मीन। सो लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन नाउ। ट्री के बारे में, जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। ओके, क्या बोलते हैं इसमें, एज वी नो कि ट्री इज अ पार्ट ऑफ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ थ्योरी हमने पढ़ा है। ओके, वेयर वी आर हैविंग द वर्टेक्स, ओके, एंड वी आर हैविंग एन एज कनेक्टिंग देम। ये हमने ग्राफ थ्योरी में पढ़ा था। तो ग्राफ दो प्रकार के हो सकते हैं, लीनियर हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है, कनेक्टेड हो सकता है, डिसकनेक्टेड। दो नहीं, कई टाइप के ग्राफ होते हैं। ठीक है, वेटेड होते हैं, नॉट वेटेड होते हैं, कई टाइप के ग्राफ होते हैं। ओके, दो टाइप का मतलब ये है कि मैं कहना चाह रहा था या तो वो क्लोज्ड हो या अनक्लोज्ड हो। ठीक है, क्लोज एंड अनक्लोज का मतलब क्या है, ये आपका एक क्लोज्ड ग्राफ है। ठीक है, दैट मीन्स एक सर्किट बन रही है। ठीक है, सर्किट इज बिन प्रिपेयर्ड। लेकिन अनक्लोज्ड ग्राफ जो होता है उसमें सर्किट नहीं बनती। ओके, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये अनक्लोज्ड ग्राफ है, इसमें सर्किट नहीं बनी। ठीक, तो एक ऐसा ग्राफ, ट्री के बारे में क्या बोलते हैं, ट्री के बारे में कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्राफ विच इज विच इज अनक्लोज्ड, जो क्लोज नहीं होता, सर्किट नहीं बनती, नो सर्किट प्रेजेंट इन इट, तो ये मेरा ट्री होती है, विदाउट एनी सर्किट। अ ट्री इज अ ग्राफ विदाउट सर्किट, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। ओके, एंड करती क्या है, क्या करती है, ट्री में नोड्स होती हैं जिन पर आप डेटा देते हो, यू आर गोइंग टू गिव डेटा ओवर द नोड्स, एंड किसी प्रक्रिया के तहत, यानी किसी फिनोमिना के अकॉर्डिंग, आई विल बी स्प्लिटिंग द ट्री। ठीक है, ये मैं करूंगा काम। तो डेटा दिया, डेटा स्प्लिट हुआ। ठीक है, ये प्रोसेस चलती रहेगी, स्प्लिटिंग ऑफ द नोड, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। ओके, फाइन। जो मेरी पहली वाली नोड है दैट विल बी कॉल्ड एज अ रूट नोड, रूट होगा ये, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में ट्री ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करती है। इन केस ऑफ रियल वर्ल्ड ट्री नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करती है, तो बस इनका जो है ट्री का हमारा उल्टा पुल्टा है। ठीक है, रिवर्स है ये।
कंप्यूटर साइंस में ऊपर से नीचे, रियल लाइफ में नीचे से ऊपर। ठीक। तो आप देख रहे हैं ये रूट नोड है, ये मेरा चाइल्ड नोड्स है, ये मेरा चाइल्ड नोड है C1, ये मेरा चाइल्ड नोड है C2। आपस में ये दोनों सिबलिंग्स कहलाएंगे, क्यों? क्योंकि ये रूट नोड भी है और पैरेंट भी है। दिस इज द पैरेंट नोड एंड रूट नोड ऑल्सो। सो भाई आपस में C1 C2 सिबलिंग्स हुए। ठीक है, इनको मैं इंटरनल नोड भी बोलता हूं, इंटरनल नोड्स। तो भाई आपने देखा ट्री में नोड्स होते हैं, नोड्स पे आई कैन हैव डेटा। ठीक है, नोड्स की होती है स्प्लिटिंग ऑन अ बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन। वो क्या होगी आगे बताएंगे। ठीक है, सो दीज नोड्स विल स्प्लिट एंड create further nodes. They are called as child nodes और internal nodes। ठीक है, तो भाई ऐसे चाइल्ड नोड बनेंगे, फिर और चाइल्ड नोड बनेंगे। ठीक है, और जहां पर स्प्लिटिंग नहीं हो सकती है, तो आप देखिएगा आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद स्क्वायर ब्रैकेट। ये फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकते, इनको आप कह सकते हैं एक्सटर्नल नोड्स। दीज आर एक्सटर्नल नोड्स। तो ये इंटरनल नोड्स हैं जो कि स्प्लिट हो रहे हैं, और ये आपका एक्सटर्नल नोड है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, विच कांट बी स्प्लिटेड। दैट मीन्स आई गॉट अ सिंगल वैल्यू हियर, जिसको मैं अब ब्रेक नहीं कर सकता। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम अवेलेबल विद द डेटा 1 2 3 4। I gave this data to the first node. Okay, it splitted into two further nodes। तो 1 2 मेरा यहां आ गया, 3 4 मेरा यहां आ गया। देन इट फर्दर स्प्लिटेड इनटू 1। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो भाई ये स्प्लिट नहीं हो सकते, 1 को अब और आप क्या ब्रेक करोगे? नॉट पॉसिबल। ठीक, तो ये मेरा रूट नोड है, ये मेरे चाइल्ड नोड्स हैं या इंटरनल नोड्स हैं, ये मेरे एक्सटर्नल नोड्स हैं जो कि स्प्लिट नहीं हो सकते हैं। मैं इनको लीव्स बोलूंगा, लीव्स। लीव्स जो होते हैं वो फर्दर स्प्लिट नहीं होते। ठीक है, ये बेसिक्स है आपका ऑफ ट्रीज। ऑल राइट, यहां पर ट्री में लेवल होते हैं, जैसे कि मेरा रूट नोड लेवल 0 पर है। दिस इज योर लेवल नंबर 1 एंड लेवल नंबर 2। तो इन्हीं लेवल्स के जो बीच का डिफरेंस होता है उन्हें मैं हाइट बोलता हूं, हाइट बोलता हूं या डेप्थ बोलता हूं, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन से। ठीक है, तो लेवल 0 पर आपका 2 to the power 0 नोड्स हैं, लेवल 1 पर 2 to the power 1 नोड्स हैं, लेवल 2 पर 2 to the power 2 नोड्स हैं। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि दिस इज माय बाइनरी ट्री, ये मेरी बाइनरी ट्री। ट्री भी कई टाइप्स की होती हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ते हैं। ट्री आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अभी मैं कंसर्न हूं बाइनरी ट्री को लेकर। ठीक है, दैट मीन्स विच इज हैविंग एट मोस्ट 2 नोड्स। ज्यादा से ज्यादा 2 नोड होंगे उसमें इंटरनल में, तो हर एक की 2 2 स्प्लिटिंग हो सकती है एट मोस्ट, सबसे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 हो सकती है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट बाइनरी। ठीक है, ये आपका बेसिक है ट्री के बारे में डिस्कशन। ओके, तो भाई अब आप ये बोलेंगे सर इसकी एल्गोरिदम बनाने की बात कर रहे हो आप, डिसीजन ट्री एल्गोरिदम, एंड व्हाट वी नो कि सर ये तो काफी फेमस है डिसीजन ट्री, एंड वी डू यूज डिसीजन ट्री इन आवर क्लासिफिकेशन टास्क, है ना, लेते हैं और रिग्रेशन में भी यूज करते हैं। स्पेशली क्लासिफिकेशन में तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसका। ओके, तो सर ये स्प्लिटिंग करके आप क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट?
बाय परफॉर्मिंग द स्प्लिटिंग ऑफ द डेटा। क्या कर सकते हो आप, क्या हेल्प हो जाएगी इससे? तो थोड़ा सा और टेक्निकल जाएं, बात करें इन डेप्थ और डिस्कशन करें इसका, तो बेहतर है। ठीक, फाइन। क्योंकि आप कहोगे सर देखिए मेरा डेटा तो स्पेस में ऐसा कुछ है, फॉर एग्जाम्पल 2D स्पेस मैं कंसिडर कर रहा हूं, आप मुझे बोल रहे हैं कि सर ये नोड है, ये ऐसा स्प्लिट हुआ, फिर ऐसा स्प्लिट हुआ। ये तो सर डिसीजन ट्री ऐसा काम करती है, वर्किंग है ये डिसीजन ट्री की, ऐसा उसका स्ट्रक्चर है। मेरे पास डेटा तो 2D में फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट है इस तरीके से। अब आप ये जो बता रहे हो, इसको मैं इससे रिलेट कैसे करूं? हाउ आई कैन रिलेट इट? यहां पर ये चीज कैसे हो रही होगी? हाउ, यदि मुझे क्लासिफिकेशन करना है तो। ठीक है, आते हैं इस पे भी बात करेंगे। तो भाई अभी इंट्रोड्यूस तो मैंने कर ही दिया टॉपिक को, बेसिक्स भी बता दिया। ठीक, थोड़ा और जानना चाहेंगे? तो डिसीजन ट्री इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विच कैन परफॉर्म क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन बोथ, जो कि रिकर्सिवली डेटा को स्प्लिट करती चलेगी इन डिफरेंट सबसेट्स और ब्रांच बनाती रहेगी। सो यही काम हमने करा था। आप डेटा को स्प्लिट कर रहे थे, यू आर डूइंग द स्प्लिटिंग ऑफ द डेटा। सो यू क्रिएटेड अ ब्रांच, दिस इज अ ब्रांच ऑफ द ट्री, ये आपने बनाए थे। ऑब्वियसली ना, ट्री की ब्रांचेस होती हैं, तो डेटा को ब्रेक कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो उसकी ब्रांचेस बनेगी बनेगी। ओके, यही काम डिसेंट्री करती है। ओके, उसमें इंटरनल नोड बनते हैं, ये मैंने बता दिया था आपको कौन कौन से इंटरनल नोड थे। ठीक है, एंड लेफ्ट नोड राइट नोड दोनों ये होते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये मेरे इंटरनल नोड थे, ये भी इंटरनल, ये भी इंटरनल, ये भी इंटरनल, ये भी इंटरनल। जब ये पूरे सॉल्व हो जाएंगे, मेरे पास बचेगा एक वैल्यू, वन वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट इट। ठीक है, ये मेरा एक्सटर्नल होगा, इसको मैं लीव्स बोलूंगा। आई एम गोइंग टू से इट्स अ लीफ, दैट इज एन एक्सटर्नल नोड। ओके, ये मेरा लेफ्ट ट्री होगा, लेफ्ट सब ट्री होगा, ये मेरा राइट सब ट्री होगा। ठीक है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। ठीक है, इस तरीके से ये मेरी ट्री होगी। ओके, चलिए फिर क्या करें? हमारा गोल यही है ट्री क्रिएट करने का, जो कि प्रिडिक्ट करे टारगेट वेरिएबल एक्यूरेटली। दैट्स व्हाट आई वांट। ठीक, तो भाई हम चलते हैं आगे। जैसा कि कहा गया कि ट्री जो है क्लासिफिकेशन के लिए स्पेशली यूज होगा, एंड इंटरनल नोड्स रिप्रेजेंट्स द फीचर्स ऑफ द डेटा। Internal nodes represent the features of the data. Branches represent the decision rules. Each leaf node represent the outcome. तो भाई देख लीजिए आप, इंटरनल नोड पे मैं फिर से बना रहा हूं डायग्राम, कौन क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, दिस यू शुड बी नोइंग। ये मेरा रूट नोड है, इस पर मैंने डेटा दिया है ना, तो माय डेटा विल बी द वैल्यूज विच आर बीन पार्ट ऑफ फीचर्स। ठीक है, ये मेरे x1 x2 x3 x4 फीचर्स हैं, तो इसी की वैल्यू मैंने उठाकर यहां पर दी है। ठीक है, लेट अस सपोज ये मेरा डेटा सेट था, ओके, जिसमें x1 x2 x3 x4 फीचर्स थे, ये उठा के मैंने यहां पर दिए हैं स्प्लिटिंग करने के लिए। ओके, सॉल्व होने के लिए। तो भाई इसकी स्प्लिटिंग होती रहेगी, कैसे होगी? क्या कंडीशन होगी जिस पर ये मेरा डेटा टूट जाए? मतलब मेरा डेटा किसी ना किसी रो पर ब्रेक होगा। ठीक है, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो जो है कुछ पोर्शन यहां पर आ जाएगा, कुछ पोर्शन यहां पर आ जाएगा। तो ये निकालना है मुझे कि किस पर ब्रेक होना है। ओके, दैट विल स्टडी हेड। बस यही यही फंडा है डिसीजन का, कि आपको ये पता लग जाए कि किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है वो। ओके, एंड वी डिड स्टडी दिस स्टफ
इन अवर इंफॉर्मेशन थ्योरी चैप्टर्स ऑफ मैथ्स, वहां पर पढ़ा है अपन ने। ठीक है, मैं बताऊंगा। यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा ब्रेक होने वाले वो है एंट्रोपी, जीनी इंडेक्स, जीनी इंडेक्स। हियर वी आर डूइंग इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, क्योंकि डेटा को स्प्लिट कर रहे हो तो भाई ऐसे पॉइंट पर स्प्लिट करना जहां पर सबसे ज्यादा जानकारी मिले। ठीक है, सो वी हैव एन आइडिया अबाउट द formulas which we have used in entropy। एंट्रोपी होती है सर माइनस लॉग ऑफ पी एक्स, पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स है ना, माइनस पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये आपकी जो है एंट्रोपी का फॉर्मूला। फिर क्रॉस एंट्रोपी होती है, वो भी यहाँ पर पढ़ेंगे, के एल डाइवर्जेंस, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर इन केस ऑफ डिसेंट्री, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही क्राइटेरिया हैं जिनके बिहाफ में आप अपनी ट्री को तोड़ोगे। कैसे तोड़ोगे, कैसे लगाओगे, मैं बताऊंगा आगे। तो भाई हुआ क्या, आपने फीचर्स दिए एज एन इनपुट डिसेंट्री को, ये कुछ यहां पर आ गए, कुछ यहां पर आ गए। तो ये है लेफ्ट सब ट्री, ये है राइट सब ट्री। ठीक है, ऐसे आ गए। ठीक है, फिर ये आगे फर्दर इन्हीं कंडीशन पे फिर ब्रेक होंगे। सिमिलर कंडीशन एंट्रोपी पर लगाओगे, एंट्रोपी लगाओगे फिर ब्रेक होगा। ठीक है, ये भी ब्रेक होगा। ओके, तो इनको मैं इंटरनल, ये लेफ्ट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है, यही मेरी इंटरनल नोड्स हैं, इंटरनल नोड्स हैं। ठीक है, तो ये रिकर्सिवली स्प्लिट होती रहेगी। ठीक है, स्प्लिट होती रहेगी। अब आपकी इच्छा है कि कितने लेवल तक ट्री को लेकर जाना है। यदि आप कुछ नहीं दे रहे हो तो वो स्प्लिट होती रहेगी, नहीं तो आई एम अवेलेबल विद हाइपर पैरामीटर, देयर आई कैन डिसाइड दैट कितने लेवल तक मुझे स्प्लिट करना है। ठीक है, दैट आई कैन डू फाइन। लेकिन यहां पर जैसे अभी मान के चलिए, ऑलराइट, ये स्प्लिटिंग हो रहा है। ठीक है, फाइन, एंड कंटिन्यू ये चलता रहेगा। एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट द लीव्स, लीव्स पर रिजल्ट आएगा मेरे को, लीव्स पर डिसीजन आएगा मेरे को। ठीक है, यानी कि ये बताएगा कि भैया ये जो पॉइंट है ये किस क्लास को बिलोंग करता। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, एक्सटर्नल नोट्स पर रिजल्ट आता है, यही उसने बोला यहां। ठीक है, क्या कहा, ईच लीफ नोड रिप्रेजेंट्स द आउटकम। तो आखिरी में मेरे पास एक्सटर्नल नोड जो है उसको मैं लीफ नोड बोल रहा हूं, वहां पर मेरे को आउटकम दिखाना है कि विच क्लास इट बिलोंग्स। ओके, तो ट्री स्प्लिट होता रहेगा, पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे, और मुझे आखिरी वाली नोड पे जो कि एक्सटर्नल बोल रहा हूं मैं उस पर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो इन डिसीजन ट्री आई एम हैविंग टू टाइप्स ऑफ नोड्स, एक तो होती है डिसीजन नोड और एक होती है लीफ नोड। ठीक है, तो मैं यहां पर जो है किसी डिसीजन के अबाउट, क्योंकि ये डिसीजन ट्री है तो मुझे डिसीजन लेना है। अब कोई पूछे भाई डिसीजन, तुम ट्री तो समझ गए, ट्री क्या होती है, आप बोलते हैं हाँ सर वो नोड होती है, रूट नोड होती है, एंड इंटरनल नोड होती है, एंड लीफ नोड, ये सारी चीजें होती है, ट्री होती है, ट्री बनती है। फिर द पर्सन विल आस्क व्हाट इज कॉल्ड एज डिसीजन ट्री, तो आप बोलोगे ये जो ट्री बनती है ये एक किसी डिसीजन के अकॉर्डिंग बनती है। आई नीड टू टेक अ डिसीजन टू स्प्लिट द नोड। Okay, there is some criteria on the basis of which I am going to split the node। वो डिसीजन लेना है मुझे, और इसीलिए मैं उसको डिसीजन ट्री बोल रहा हूं। और जो मेरा लीफ नोड है उस पर मुझे रिजल्ट मिलेगा, आउटकम मिलेगा, तभी इसका नाम डिसीजन ट्री है। ओके, तो जैसे कि ये आगे कहते हैं कि डिसीजन नोड है, लीफ नोड है, डिसीजन नोड पे मैं डिसीजन लेता हूं, स्प्लिटिंग करता हूं, कई ब्रांचेस बनती हैं। लीफ नोड पे मैं रिजल्ट शो करूंगा, उनकी कोई भी ब्रांच नहीं बनेगी, वो फर्दर स्प्लिट नहीं होते हैं। ओके, दे विल नॉट स्प्लिट फर्दर। यदि आप बोलो कि सर रिजल्ट आ गया ये लीफ नोड पे, वन आ गया ना, आउटकम आ गया, अब आप बोलो सर इसको स्प्लिट करो, तो भाई ये नहीं होगा, इसकी स्प्लिटिंग नहीं होती। ठीक, यहां पर डिसीजंस होते हैं, क्लास कौन से क्लास को मेरा डेटा पॉइंट बिलोंग कर रहा है। ओके, तो भाई बात यह है, डिसीजंस और द टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फीचर गिवन इन द डेटा सेट, वो आगे करते हैं।
अब जो है, फाइन, रुकिए, ये रहा मेरा आर्किटेक्चर। उसके पहले मैं कुछ पॉइंट्स और क्लियर कर दूं। इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर गेटिंग ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम डिसीजन बेस्ड अपॉन द गिवन कंडीशंस, यानी कि जो भी कंडीशंस हैं मुझे गिवन है, जो भी क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से मैं क्या करने वाला हूँ, डिसीजन ट्री बनाऊंगा और अपने नोट्स को स्प्लिट करता रहूंगा रिकर्सिवली, एंड एट द एंड आई एम गोइंग टू शो यू द रिजल्ट्स। ठीक है, इनको हम कार्ट एल्गोरिदम भी बोलते हैं, क्योंकि डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन दोनों काम कर सकती है। दैट्स व्हाई वी से, यदि आपसे कोई पूछे कार्ट क्या होता है, तो विल से क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, बिकॉज डिसीजन ट्री कैन परफॉर्म बोथ ऑफ these techniques. So I say decision tree comes under a criteria of CART, classification and regression. ओके, तो इसको कार्ट का भी नाम दिया गया। ठीक, तो जैसे एक एग्जांपल उन्होंने लिया, डिसीजन ट्री सिंपली आस्क्स अ क्वेश्चन, बेस्ड अपॉन द आंसर यू कैन से यस और नो। ठीक है, तो ये रूट नोड है या डिसीजन नोड है। आपने कुछ पूछा, उसका आंसर यदि किसी ने दिया यस और किसी ने दिया नो, तो स्प्लिटिंग हो गया। ठीक है, फिर यहां पर फिर पूछा, आंसर आया यस या नो, जो भी है वो फिर स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी स्प्लिटिंग चलती रहेगी। तो जहां पर डिसीजन नोड्स हैं वहां पर स्प्लिटिंग होगा। वट एवर बी द लीफ नोड्स आर, एक बार मिल गया ना, लीफ मिल गई, तो फिर फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होगा। तो जैसे यहां पर लीफ नोड मिला, नो स्प्लिटिंग। डिसीजन नोड मिला है तो फर्दर स्प्लिटिंग हो सकता है। ये हमारा टास्क चलता रहेगा। ओके, डिसीजन ट्री ऐसे बनती है। आई नीड टू टेक अ डिसीजन, करना है नहीं करना है, करना है तो फिर उसमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, दिस विल गो ऑन। ये डिसीजन ट्री का स्ट्रक्चर है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम है, और बहुत सारी चीजें हिडन है जो आपको नहीं पता, ये भले ही देखा हो आपने, बट देयर आर मेनी थिंग्स हिडन इनसाइड दिस एल्गोरिदम जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक, तो भाई मेरे पास रूट नोड है, बता दिया मैंने, फ्रॉम वेयर द ट्री स्टार्ट्स, पेरेंट, मतलब रूट है या पेरेंट है, ये बाकी पेरेंट तो दूसरे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये जो है मेरा रूट नोड, ये पेरेंट है मेन, ये भी पेरेंट है, लेकिन किसका? ठीक है, ये पेरेंट है इनका, इसका और इसका, ये पेरेंट है। ठीक है, ओके, ये भी पेरेंट है, किसका? इनका। ठीक है, फाइन, और आपस में ये दोनों सिबलिंग हैं। ये पूरी ब्रांच है या सब ट्री है, ये भी पूरी ब्रांच है या सब ट्री है। ओके, तो इस तरीके से टेक्निकल आप इसको समझ भी पा रहे हैं। I already told you can read it. तो लेफ्ट नोड है, लेफ्ट नोड्स आर द फाइनल आउटपुट नोड एंड द ट्री कैन नॉट सेग्रीगेट फर्दर। लीफ नोड, लेफ्ट नहीं लीफ, जो फाइनल जो है आपका आउटपुट है। स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग एक प्रोसेस है जो कि मुझे डिसीजन ट्री पे करना पड़ेगी। ठीक है, रूट नोड पे स्प्लिटिंग होगी एंड इंटरनल नोड्स पे स्प्लिटिंग होगी, करना पड़ेगी मुझे, उनसे ब्रांचेस बनेगी, सब ट्री बनेगी। ठीक है, और एक प्रोसेस और होती है जिसे मैं प्रूनिंग कहता हूं। प्रूनिंग का मतलब ये था, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड ब्रांचेस फ्रॉम द ट्री। देखिए क्या है, क्या है, आप अभी से समझें कि रियल लाइफ में भी यदि मैं ट्री की बात करूं, ओके, तो ट्री में ब्रांचेस होती हैं। कई ब्रांचेस ऐसी होती हैं जिन पर बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे फल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, ओके, देर आर सर्टेन ब्रांचेस वेयर फ्रूट्स आर प्रेजेंट। देर माइट बी सम ब्रांचेस जिस पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली पत्ती पत्ती है। ठीक है, अब क्या हुआ, एंड वट एवर वी आर लर्निंग वी आर रेफरिंग इट टू द रियल लाइफ, है ना, कुछ भी हाइपोथेटिकल या ऐसा नहीं है जो कहीं यूनिवर्स से बाहर से कहीं आया हो। ठीक है, सब कुछ वही है जो हमारी लाइफ में होता है, उसी से ये एग्जाम्पल लेके ये सब अल्गोरिदम बनाया। तो क्या हुआ कि इन ट्री ऑल्सो, रियल ट्री ऑल्सो, है ना, वहां पर भी ऐसी ब्रांचेस होती हैं जहां पर फल लगते हैं, और ऐसी ब्रांचेस होती है जहां पर फल नहीं लगते, सूखी हुई है वो। अब जैसे आप बात कर रहे हो कि सर मुझे ट्री को एक्सप्लोर करना है, ओके, आई नीड टू डिवाइड द डेटा रिकर्सिवली, देन फिर डिवाइड करना है,
फिर डिवाइड करना है, फिर डिवाइड करना, सर ये मेरे को करते चले जाना है सर, कंटिन्यूसली आई नीड टू डू। तो भाई यहां पर एक इशू क्रिएट हो सकता है कि आप कर तो रहे हो, लेकिन ऐसी ब्रांच में मत फंस जाना जहां पर फ्रूट्स ही ना हो। ठीक है, मतलब आप तो वही ट्री में ब्रांचेस को एक्सप्लोर करना चाहोगे जहां पर मुझे फ्रूट्स या रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। ऐसी ब्रांचेस में मत चले जाना जहां पर कुछ भी नहीं है और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उन ब्रांचेस में। तो यहां प्रूनिंग एक टेक्निक है विच विल कट ऑफ द अनवांटेड ब्रांचेस फ्रॉम द ट्री। ठीक है, दैट्स व्हाट दे टोल्ड कि प्रूनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड ब्रांचेस फ्रॉम द ट्री। जैसे कि क्या होता है, हमारे पास ट्री में भी कई टाइप हैं, जैसे एक होती है आइसोलेशन फॉरेस्ट। आइसोलेशन फॉरेस्ट वो रैंडम फॉरेस्ट जब मैं बताऊंगा कि क्योंकि ट्री से ही रैंडम फॉरेस्ट बनेगा, और ट्री से ही फिर आपका आगे की जितनी भी एल्गोरिदम है वो ट्री से ही बनेगी अब। ओके, क्योंकि आसान है ये ऐसे समझना अभी। ठीक है, मैं बताऊंगा कठिनाई कहां पर आएगी। ऐसे तो भी बढ़िया मजा आ रहा सर, हाँ स्प्लिट तो कर रहे हो आप, और क्या है। ठीक है, लेकिन जब इंटरनल फिनोमेना को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ चैलेंज आ रहे हैं। ठीक, तो प्रूनिंग करना पड़ती है हमें, उन ब्रांचेस को रिमूव करना पड़ता है। ठीक, ये बात हुई। फिर आगे बढ़ते हैं। पेरेंट एंड चाइल्ड नोड के बारे में आपको बता दिया मैंने। रूट नोड पेरेंट होता है सबका, बाकी तो फिर फर्दर जैसे जैसे स्प्लिट होगा पेरेंट और चाइल्ड बनते चले जाएंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि सर अभी मैं जब स्टार्टिंग करा अपने लेक्चर का, तो आई टोल्ड कि देखिए ट्री जो है वो ऐसी बन रही है। ओके, क्या बताया था मैंने, इन दिस ओनली, इन दिस नोट्स ओनली व्हेन आई स्टार्टेड। ओके, ठीक है यहाँ। ओके, लेट मी चेक आउट व्हाट आई एक्सप्लेन्ड। ये तो भाई मैंने बताया आपको कि ट्री तो ऐसे बन रही है, मेरा डेटा पॉइंट्स ऐसे मौजूद है 2D स्पेस में। आप ये बताइए कि मैं इस रिप्रेजेंटेशन को इससे कैसे रिलेट करूं, दैट वाज द क्वेश्चन। सपोर्ट वेक्टर मशीन में तो सर आपने अच्छा बता दिया था कि यदि डेटा है स्पेस में 2D में, यदि मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो सर आप हाइपर प्लेन बनाते हो एंड उसको आप डिवाइड करते हो क्लासेस में। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सर आपने बताया था, अगेन 2D रिप्रेजेंटेशन है, आप सर एक सिग्मोइड फंक्शन बनाते हो और एक थ्रेशोल्ड लेते हो एंड यू से 0.5 है थ्रेशोल्ड, ऊपर वाला क्लास 1, नीचे वाला क्लास 0। तो भी समझ में आ रहा है सर। अब ये ट्री का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है तो सर मैं इसको कैसे डिवाइड करूंगा, इसका कोई ग्राफ हो तो बताइए, इसको कोई ज्योमेट्रिकली शो कर सकते हो तो करके बताओ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको समझते हैं। तो क्या है, ज्योमेट्रिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें ट्री के लिए, सो डिसीजन ट्री creates set of axes which are parallel hyperplanes which divide the space into number of hypercuboids during the inference। यानी कि when we are going to solve a decision tree, it will create it will create hyperplanes। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सेस पैरेलल हाइपरप्लेन्स वो बनाती है, एक नहीं कई हाइपरप्लेन बनते हैं। ठीक है, और जब तक मेरी ट्री सॉल्व हो रही है तब तक ये बनाते चला जाएगा। ये नहीं कि क्या कहना चाह रहे हो आप। ठीक, तो भाई अभी बताते हैं आपको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। Decision tree can be visualized as a collection of hyperplanes. These planes are parallel to the coordinate axis and perpendicular to each other। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि क्या है, आपने सर बोला कि मेरा ये डेटा था, दिस इज माय डेटा। ओके, ये पॉइंट्स हैं मेरे स्पेस में मौजूद हैं। व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल क्रिएटिंग अ हाइपर प्लेन। लेट अस सपोज पहला वाला हाइपर प्लेन मैंने ये बनाया जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये देखो मेरा वाई एक्सिस है,
इसके पैरेलल है ये हाइपरप्लेन। सो द फर्स्ट हाइपरप्लेन आई क्रिएटेड, यानी क्या करता है डिसीजन ट्री, डेटा को तोड़ता है, ब्रेक करता है। तो भाई ये देखो, ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं, ये मेरे दूसरे डेटा पॉइंट्स हैं। अब इसको इससे रिलेट करो, करो रिलेट। तो हाइपरप्लेन ने क्या कर दिया, ये पैरेलल हाइपरप्लेन ने उसको ब्रेक कर दिया, डेटा पॉइंट्स को टू पार्ट्स में। ये जो हो रहा था ना, इसको मैं ज्योमेट्री के माध्यम से समझा रहा हूं। उसके बाद ये दूसरा हाइपरप्लेन बनाएगा, ये वाला, लेट अस सपोज ये रहा हाइपरप्लेन। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाया इसने, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, ऐसा कुछ बना हाइपरप्लेन, विजुअली परपेंडिकुलर टू द इनिशियल हाइपरप्लेन। इसके परपेंडिकुलर है ये H1, ये रहा H2, इसके परपेंडिकुलर। दूसरा फिर तोड़ दिया मैंने, फर्दर ब्रेक कर दिया, ठीक है। चाहो तो मैं इसको शायद एक्सटेंड भी कर सकता हूं, क्योंकि हाइपर प्लेन्स आर एक्सटेंडेड इन्फाइनेटली। ये यहां पर बोला नहीं गया, हम सपोर्ट वेक्टर मशीन में पढ़ के आए हैं कि हाइपर प्लेन की कोई लिमिट नहीं है, जहां से लेकर जहां तक खींच दो उसको, ठीक है। तो लेट अस सपोज उसको एक्सटेंड करा, तो ये जो डेटा पॉइंट है ये भी निपट गए, ये भी ब्रेक हो गए। तो भाई आपने ये टुकड़े कर दिए और ये टुकड़े कर दिए, फिर वापस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हाइपर प्लेन बनाओ, अगेन ऐसा ऐसा करके बनाओ कुछ हाइपर प्लेन। लेट मैं इसको बोल्ड कर रहा हूं, तो फिर डेटा पॉइंट ब्रेक हो गए, फिर टूट गए, फिर परपेंडिकुलर बनाओ, फिर परपेंडिकुलर बनाओ, फिर परपेंडिकुलर बनाओ, फिर परपेंडिकुलर बनाओ। तो ये जो हाइपर प्लेन्स हैं, दे आर पैरेलल टू एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे बनती है डिसेंट्री ज्योमेट्रिक वे में। आपको यदि बताया जाए कि कोई पूछे आपसे कि चलो ठीक है, डिसेंट्री आपने बता दिया, ये ऐसे ऐसे स्प्लिट करते हो, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, सब हो गया, मुझे ज्योमेट्रिकली समझाओ कि कैसे काम करती है। ये किसी को पता है क्या? ठीक है, ये ऐसे काम करती है। दिस इज अ ज्योमेट्रिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ decision tree. We create parallel hyperplanes which are parallel to the axis, and we keep on making them which are perpendicular and that। अब यहां पर मेरे पास एक पॉइंट बचेगा भाई, करते करते, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हाइपरप्लेन बनेंगे। सो कुछ मेरे पास यहां होगा, कुछ यहां पर होगा, ऐसे करके मेरे पॉइंट्स आते रहेंगे, ठीक है। लेट मी शो यू द डायग्राम जो उन्होंने मुझे बनाकर दिया है, या आपको शो कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे आगे का पढ़ने वढ़ने वाला तो मैटर है नहीं, पढ़ पढ़ के क्या बताऊं मैं आपको। ऐसे हाइपर क्यूबॉइड्स बन रहे हैं, ये आप देख रहे थे ना, ये ऐसे हाइपर क्यूबॉइड्स बनेंगे, आप देख सकते हो। तो क्यूबॉइड क्या होता है, वो ये देखो बन रहा है ना, क्यूबॉइडल टाइप का बन रहा है, ठीक है। फिर एक क्यूब ये बना, फिर एक क्यूब, वो क्यूब क्यों बोल रहा है, क्योंकि एक्स वाई जेड है। अभी भाई मेरे पास एक्स और वाई है, यदि मैं जेड एक्सिस से जोड़ दूंगा तो वो क्यूब बन जाएगा। अभी आप बोलोगे सर क्यूब का है, का एक्स और वाई है ना, तो भाई क्यूब पे जेड भी ले लो तो क्यूब बनेगा। ओके, अभी मान लो स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है, तो चलो ये कंसिडर कर लो, ठीक है। तो ऐसे बन रहा है, ये काम करता है डिसीजन ट्री, प्लेन बना के ब्रेक करता है डेटा पॉइंट्स को, ठीक है। ऑलराइट, तो भाई ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा नोट्स, कोई इशू नहीं है, मुझे मेरा काम समझाने का था। ओके फाइन, एंड देन वो क्लासिफिकेशन करेगा, जो भी डेटा पॉइंट जिस रीजन में फॉल कर रहा होगा उसके हिसाब से बोल देगा यू आर ऑफ 1 एंड यू आर ऑफ 0, बता देगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ डिसीजन ट्री, ठीक है। इंटरप्रिटेशन करते रहिएगा आप, ठीक है। तो ये मेरा डायग्राम है, कुछ ऐसे देख सकते हो आप, ये रहा। आई टुक T1, T1 ये एक हाइपर प्लेन था, T2 दूसरा हाइपर प्लेन था, T3 तीसरा वाला हाइपर प्लेन था, एंड सो ऑन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस थिंग। ये मेरी ट्री बन रही है, उसके करस्पॉन्डिंग तो जो भी डिसीजन होगा उसके अबाउट मैं डेटा पॉइंट्स को ब्रेक करता रहूंगा और हाइपर प्लेन बनाते रहूंगा, ठीक है। अब यहां इतना टफ नहीं बचा, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना मैं एसवीएम में ले रहा था। एसवीएम में लीनियर वाला तो चलो ठीक है, बाकी वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप वाले में दिक्कत आती है। यहाँ डिसेंट्री में ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, नॉन लीनियर लीनियर हो, तुम तो ये काम करो बस, ठीक है, डिवाइड करना शुरू करो आप, तो देखते हैं जो होगा। ऑलराइट, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू।
ओके, फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ फिर, ये हमने बेसिक्स पढ़ा कि ट्री ऐसे काम करता है, ज्योमेट्रिकल है। अब ये मेरे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हालांकि इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ये पूरा न्यूमेरिकल मुझे सॉल्व करके दिखाना है आपको, वर्किंग पूरी डिसेंट्री की न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। बट अभी बता रहा हूं कि डेटा सेट आपको कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, वेर यू आर हैविंग द फीचर्स एज आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। These are the four features you are available and this is the decision which you have to give कि गेम खेलना है या नहीं खेलना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आउटलुक सनी है, टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी हाई है, विंड धीरे धीरे चल रही है, खेलना नहीं है, डू नॉट हैव टू प्ले द फुटबॉल। फिर इसी तरीके से यहां पर आपको दे रखा है कि यू हैव टू प्ले द फुटबॉल और डोंट हैव टू प्ले द फुटबॉल। ये मेरे डिसीजन है जो मुझे लेना है। फीचर मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, फोर फीचर्स अवेलेबल हैं। ध्यान ध्यान दीजिए, मेरे पास जो डेटा सेट है ये डेटा सेट में कैटेगरिकल फीचर्स हैं मेरे पास, ये सारे कैटेगरिकल हैं फीचर्स, है ना। तो अभी ऑब्जेक्ट टाइप कैटेगरिकल डेटा है और टारगेट मेरा यह है कि डिसीजन लेना है कि आई नीड टू प्ले और आई डोंट नीड टू प्ले। तो इसकी डिसीजन ट्री ये आपको बना के दी है उन्होंने, ठीक है। दिस इज हाउ द डिसीजन ट्री लुक्स फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई एम हैविंग आउटलुक फीचर, आई एम हैविंग ह्यूमिडिटी, आई एम हैविंग विंड, ओके, ये मेरे पास है। तो इसको देखकर अभी इसको सॉल्व करेंगे हम आगे। ये डिसीजन ट्री मैं आपको बनवाऊंगा, पूरा न्यूमेरिकल है इस पे। अभी सिर्फ उन्होंने दिया है कि ये एक प्रॉब्लम है, यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि आपको फुटबॉल खेलना है नहीं खेलना है। बाइनरी जो है वो डिसीजन है, यस नो वाला, और उसकी ट्री ऐसे बन रही है, ओके। तो पहला जो मेरा नोड है रूट, वो आउटलुक है, आउटलुक है। क्वेश्चन ये है कि आउटलुक आया कहां से, क्या सोचा मैंने, क्या हुआ कि आउटलुक को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ऐसा मेरा पहला नोड, ओके। फिर ये स्प्लिट हुआ आगे, एंड क्योंकि आउटलुक में मेरे पास थ्री क्लासेस थी, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन, तो तीनों फीचर के ये इस फीचर के आउटलुक के अबाउट थ्री जो क्लासेस थी उनके करस्पॉन्डिंगली फिर ये ब्रेक हुआ, ह्यूमिडिटी यहां आया, विंड यहां पर आया, ठीक है। तो डिसीजन ट्री इस तरीके से बनेगा उस प्रॉब्लम का। आई नीड टू डिसाइड कि मेरा रूट नोड कौन सा होगा और इंटरनल नोड कौन से होंगे। तो ये जो पूरा न्यूमेरिकल जब सॉल्व होगा तब जाके आपको पता चलेगा। और आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि द डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ योर क्राइटेरिया एंड द क्राइटेरिया आर एंट्रोपी, जीनी इंडेक्स, इंफॉर्मेशन गेन। ये क्राइटेरिया है आपके क्लासिफिकेशन के लिए, ओके। ये बनाएंगे अपन आगे, और वो आ भी गए मेरे सामने। एंट्रोपी, तो भाई इंफॉर्मेशन थ्योरी हम पढ़े हैं, और हमारा जो शेनॉन थे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। अब ये तो पता नहीं अच्छे थे, मैं बोल रहा हूं अच्छे क्यों थे, क्योंकि इन्होंने हमें डायरेक्शन दे दी पढ़ाई की, और इन्होंने बोला था कि इंफॉर्मेशन को मुझे क्वांटाइज करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ये मुझे करना है। तो ये भाई बोल के गया कि क्वांटाइजेशन करना है आपको, तो प्रोबेबिलिटी ले लो, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, और उसका उठा के लॉग कर दो, माइनस लॉग ऑफ पी एक्स। तो वो इंफॉर्मेशन क्वांटाइज हो गई, न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट हो गई। तो कोई भी इवेंट या एक्टिविटी हो रही है उससे मुझे कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये इस तरीके से कर सकते थे। दैट्स व्हाट यू कैन डू। ये शनॉन बोल के गए थे। इसी को आगे बढ़ाया आपने, एंट्रोपी बोल दिया, क्योंकि रैंडमनेस आ गई, है ना, रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल तो बड़ा धमाकेदार टॉपिक है, ये हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है, क्योंकि यू आर हैविंग अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डेटा, एंड फिर वहां पर हम बोलते थे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और उस डिस्ट्रीब्यूशन में वो रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यू अज्यूम कर सकता था, दैट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन, ठीक है, कि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो किस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग है, नॉर्मल है या कोई और है, ठीक है, पढ़ा था हमने। तो एंट्रोपी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सरप्राइज और अनसर्टेनिटी। हम तो भैया अनसर्टेनिटी बोलते हैं, एंट्रोपी का मतलब अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है, लाइफ इज अनसर्टेन, सीधी सी बात है।
कई पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ले रहे हो, उसके इतने सारे पॉसिबल आउटकम हैं, उनकी ये प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो एंट्रोपी लिखते हैं पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स, ये मैं पहले ही बोल दिया था, माइनस पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स, ये आपकी एंट्रोपी होती है। और समीशन लेना है। समीशन क्यों लेना है भाई, आपके इतने आउटकम है तो समीशन तो लोगे, हर एक की प्रोबेबिलिटी लिखी है यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी एंट्रोपी है। और माइनस साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना, नेगेटिव इंफॉर्मेशन थोड़ी ना होगी, पॉजिटिव होगी। क्योंकि आप लॉग ले रहे हो तो वो आंसर जो भी है पॉजिटिव क्रिएट करने के लिए वो आप यहां करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर आप डिसीजन ट्री में एंट्रोपी काहे पढ़ा रहे हो। ठीक है, वाई यूर टीचिंग एंट्रोपी, ये तो हमने इंफॉर्मेशन थ्योरी में पढ़ लिया एंट्रोपी, अभी डिसीजन ट्री पढ़ रहे हैं, तो एंट्रोपी क्यों पढ़ा रहे हो भाई। एंट्रोपी ही वो क्राइटेरिया है जो कि लगा हुआ है एक नोड को ब्रेक करने में, क्या क्राइटेरिया होगा, ऑन व्हाट बेसिस आई एम गोइंग टू ब्रेक इट। सो एंट्रोपी इज वन ऑफ द क्राइटेरिया विच विल हेल्प मी इन ब्रेकिंग अ डिसीजन ट्री। ओके, तो भाई यहां पर वो कैसे लगेगा वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ठीक है, यहाँ पर आप एंट्रोपी जो पढ़े थे उसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे 100 डेटा पॉइंट्स हैं, तो 30 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लास को बिलोंग करते हैं, 70 पॉइंट्स नेगेटिव क्लास को बिलोंग करते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी, 3/10, क्योंकि 30/100 तो 3/10। नेगेटिव पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी, 70/100 यानी 7/10। इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बात खत्म हुई। ठीक है, ये इनकी प्रोबेबिलिटी आई। अब उससे बोला गया कि एंट्रोपी निकालो, तो एंट्रोपी क्या होती है, माइनस पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स, है ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लास। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास, कौन सी क्लास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थी, तो 30 पॉजिटिव क्लास की थी, तो पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी कितनी, 3/10, तो 3/10 लॉग ऑफ 3/10। नेगेटिव की कितनी, 7/10 लॉग ऑफ 7/10। तो एंट्रोपी इतनी है भाई, 0.88। दिस इज द एंट्रोपी, दिस इज द रैंडमनेस। ठीक है, जो कि बड़ी हाई नजर आ रही है मेरे को, जो कि कह रहा हाई लेवल ऑफ डिसऑर्डर है, मीनिंग लो लेवल ऑफ प्यूरिटी है। तो आप डिसीजन ट्री को ब्रेक करोगे, है ना, उसमें इंप्यूरिटी देखोगे कि कितनी है और उसके बिहाफ में ब्रेक करोगे। और ये इम्प्यूरिटी वाली बात शायद मैं आपको समझा चुका हूं, नहीं तो मैं आपसे थोड़ा और टाइम लूंगा कि ये जो भी कुछ हुआ और ये जो लाइंस बोली उसने कि एंट्रोपी बड़ी ज्यादा आ रही है और डिसऑर्डर है और प्यूरिटी की मात्रा कम है, यानी डेटा हिट्रोजीनियस है। यदि होमोजीनियस होता तो प्यूरिटी थी, हिट्रोजीनियस में इम्प्यूरिटी ज्यादा होती है, यानी कई चीजों का मिश्रण होता है, वो हिट्रोजीनियस होता है। ठीक है, तो क्या कहने की मतलब है, चलिए बात करते हैं। लेट अस सपोज, मैं शायद बता भी चुका हूं, एक बार फिर रिवाइंड कर रहा हूं। लेट अस सपोज यू आर हैविंग अ बकेट, यू आर हैविंग 4 रेड बॉल्स प्रेजेंट इन इट। 4 रेड बॉल्स हैं इसके अंदर बकेट में, सब सेम साइज सेम कलर है ना, रेड है, सब सेम साइज की हैं। इफ यू पिक एनी ऑफ अ बॉल फ्रॉम दिस बकेट, ऑब्वियसली वो रेड कलर की तो निकलेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड इज 100%। अब अगला डायग्राम है आपके पास, उसमें आपके पास फिर से 4 बॉल्स हैं। एक ब्लू बॉल मैंने जो है यहां पर इंट्रोड्यूस करी। अब क्योंकि आपने ब्लू बॉल इंट्रोड्यूस कर दी, डेफिनेटली यहां पर इम्प्यूरिटी आ गई, क्योंकि यदि सारी रेड होती तो प्यूरिटी होती, लेकिन एक रेड आ गई, एक 3 रेड है 1 ब्लू है, तो इम्प्यूरिटी आ गई। यहां पर कुछ इम्प्यूरिटी बढ़ गई, यानी अब
आप किसी भी बॉल को पिक करोगे, प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो रेड की निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/4, ब्लू की निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है, तो अब आप एंट्रोपी, जब यहां पर एंट्रोपी कैलकुलेट करते तो आती जीरो, क्योंकि क्यों, प्यूरिटी थी, तो कोई रेंडमनेस थी नहीं। आप लिखते पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स, तो भैया यहां तो वन है प्रोबेबिलिटी, तो लॉग वन क्या होता है, जीरो, बात खत्म। यहां कुछ आपको रेंडमनेस दिखने को मिलेगी, कुछ इंप्योरिटी आपको मिलेगी। यदि मैं फिर से 4 बॉल्स लेता हूं, 2 ब्लू और 2 रेड करूंगा, अब इंप्योरिटी और बढ़ गई। ठीक है, इंप्योरिटी बढ़ चुकी है यहाँ, क्योंकि अब आप निकालोगे कोई सी बॉल तो भाई उसमें ब्लू और रेड दोनों के चांसेस 50-50% के हैं ना, इंप्योरिटी हैज बीन इंक्रीज्ड। ओके, फाइन, ठीक है। तो भाई यही कॉन्सेप्ट है जो कि मेरे डिसीजन ट्री के अंदर एप्लीकेबल है। डेटा पॉइंट्स जो हैं, डेटा पॉइंट्स जो हैं उसमें मुझे इम्प्यूरिटी को चेक करना है। ठीक है, एंट्रोपी के माध्यम से। इम्प्यूरिटी का मतलब, इम्प्यूरिटी का मतलब क्लास वाइज, क्लास, क्योंकि मैं ले सकता हूं रेड एंड ब्लू, लेट अस सपोज दीज आर टू क्लासेस, पॉजिटिव क्लास एंड नेगेटिव क्लास। ओके, तो यदि मेरे पास ऑल द डेटा पॉइंट्स आर ऑफ सेम क्लास, सेम क्लास के हैं, तो प्यूरिटी। यदि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के हैं तो इम्प्यूरिटी। जितने ज्यादा मिक्सअप हैं, जितने ज्यादा, जैसे अभी आपको क्वेश्चन पड़ा था कि 100 डेटा पॉइंट से 60 पॉजिटिव हो गए, 40 नेगेटिव हो गए, तो भाई इम्प्यूरिटी ज्यादा है। लेकिन यदि 90 पॉजिटिव है, 10 है नेगेटिव, तो इम्प्यूरिटी कम है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्यूरिटी आई विल बी डिवाइडिंग, डिवाइडिंग द डेटा। यह मैं काम करने वाला हूं। तभी हमने यहां पर एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करा है। तो आपसे जो बात हुई थी कि डिसीजन ट्री इज गोइंग टू टेक अ डिसीजन दैट इट विल ब्रेक द डेटा पॉइंट्स इनटू सब ट्री, तो एंट्रोपी ही एक क्राइटेरिया है जिसके, एक क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ में डिवाइड होगा। इसके अलावा और भी क्राइटेरिया है, ये एक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, इम्प्यूरिटी वाला। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो उन्होंने यहां आपसे थ्योरी में यही कहा था। ओके, हाई एंट्रोपी का मतलब हाई इंप्यूरिटी है, रेंडमनेस ज्यादा है। ठीक है, एंड एंट्रोपी इज मेजर्ड बिटवीन 0 and 1। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्लासेस ऑन योर डेटा। जरूरी नहीं है वन से भी ज्यादा आ जाए तो पता नहीं, एंट्रोपी कैन बी ग्रेटर देन 1। इट मीन्स दैट द सेम थिंग, वी हैव हाई लेवल ऑफ डिसऑर्डर। वन जितना ज्यादा एंट्रोपी की वैल्यू आएगी उतना ज्यादा जो है इंप्यूरिटी आएगी। ओके, दैट्स व्हाट वी विल बी हैविंग। ओके, तो ये है मेरा डिसिजन ट्री का बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ impurity एंड entropy. Okay, fine. So we will be continuing ahead, okay, in this decision tree, entropy, क्रॉस एंट्रोपी, ये मैं बताऊंगा आपको आगे। और इंफॉर्मेशन गेन, इनको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि पूरा आपका लेक्चर्स जो है वो इन्हीं इंफॉर्मेशन थ्योरी बेस्ड जो टर्म्स हैं उस पर आएगा। ठीक है, स्प्लिटिंग कैसे करना है। ठीक है, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, क्योंकि डिसेंट्री इज वन ऑफ द एल्गोरिथम विच इज सब्जेक्ट टू द ओवरफिटिंग, क्यों आती है, कैसे आती है। ठीक है, ये सारी बातें मुझे आपसे कहनी है। ठीक है, इनको पढ़ना है, एन न्यूमेरिकल सॉल्व करना है डिसेंट्री का। फाइन, और यहां पर जो थोड़ा सा टफ पड़ेगा वो अभी हम वर्किंग तो देखेंगे ही। ठीक है, कि कैसे स्प्लिटिंग हो रहा है वो भी अभी आपको बेसिक्स बता दिया आई टोल्ड, बट स्टिल थोड़ा सा वहां पर भी मुझे देखना पड़ेगा। एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट माय फर्स्ट लेक्चर ऑन डिसीजन ट्री। ओके।